ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ یہ لفنگا غیر لفنگا چھکا نہیں ہے، یہ نامرد نہیں ہے، چٹیا پنڈے خریدنے نہیں گیا ہے، یہ کوئی کریم پاؤڈر خریدنے نہیں گیا، بلکہ یہ کیوں گیا ہے؟ اس کی نیچ گندی ہے، اس کی سوچ گندی ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت میں کتا پن ہے، اس کی نیت میں غلاظت ہے۔ یہ عورتوں کے میلے میں تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے، یہ کریم پاؤڈر خریدنے نہیں گیا ہے، بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے، یہ اس لیے گیا ہے کسی کے گولی لگ جائے، کسی کے دھکا لگ جائے، کسی سے آنکھیں ٹکرا جائے، کسی سے موبائل نمبر مل جائے، کسی سے بات ہو جائے، چیٹنگ شروع ہو جائے، اس بےہودے سے کہہ دینا ارے کسی کی بہن بیٹی اس سطح پہ گولی مارنے سے پہلے اپنے گھر جا، تیری ماں تیرے گھر میں ہے، جب ماں کے کپڑے اٹھا تیری بہن تیرے گھر میں ہے، جب بہن کے ٹکر مار اپنی بھانجی سے آنکھیں لڑا، بھتیجی سے آنکھیں لڑا، اگر شرم آیا غیرت ہے تو چلو اور پانی میں ڈوب مرنے کی جگہ نہیں ہے، آج کے بعد توبہ کرے گا اور یہی کہے گا میں مار سکتا ہوں مگر حسین پاک کے مشن سے ہٹ کے نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چاہے زانے اہل دے مسلک نعرہ حملہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، تماشا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، تماشا۔ ذرا غور تو کرو کیا دن تھا یار، یہ کیا ہوا یہ دن؟ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا اور کہے گا میں حسین پاک کا عاشق ہوں، حسین لبیک حسین لبیک، یہ کرے ایک ٹائم کی نماز، عشاء کی نماز نہیں پڑھو، فجر کی نہیں پڑھو، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ یہ جو تم بہن بیٹیوں کو تک، اور میں اپنی بچیوں سے کہہ کے جاؤں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں میری بہن تو فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہے، جب تک اگر ان کی طرف سے نرم پہلو نہیں ملے گا، کسی لڑکے کی ہمت نہیں اس کی طرف وہ آنکھیں چلانے، جب تک لڑکیوں کی طرف سے اجازت کا پہلو نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اشارے کرے نکالے چپل دو مار دے چوراہے پہ، زندگی میں کبھی اشارہ نہیں کرے۔ صحیح، تم تو بات ہونا بات، اب کسی مولانا کی نہیں، ذرا نبی کی حدیث سنو، اگر کلیجہ رکھتے ہو تو سنو۔ اللہ حضرت آنکھوں میں جب میں دیکھتا ہوں میں حالات سے یہ ساتھ کر تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء۔ اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا امام، چینل والے بھی دیکھ رہے کیچ کرنا، اس لیے پہلے مدرسے میں پڑھوں بعد میں یہاں پڑھاؤ۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے آئے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ اور اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مفتی صاحب بھی نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو روک دے نا تو کتنا بڑا پیر ہو وہ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ سب صحیح جانتے ہو؟ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے علاقے میں تو بعض پیر بھی اتنا بڑا ہنڈا آ گیا، نماز ایک ٹائم ہی نہیں پڑتا، ٹانگیں پھیلا دیتا۔ میں پاؤں کر رہا تھا تو سمجھ رہے، ٹانگیں پھیلا دیتا ایسے کر کے، عورتیں ہاتھ پاؤں دباتی ہیں، عورتیں یہ پیر ہے کم وقت، اس کو اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں اگر تمہارے علاقے میں ایسا پیر آ جائے نا تو اب ہاتھ پاؤں نہ دبائیں، ذرا موٹی سی مل کے اس پیر کا گلا دبا دو، مار ڈالو، ختم خلاص۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اگر اجازت ہو تو کھولوں، اور یہ کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کے ساتھ میں عبادت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہوتی چلی جاتی۔ آقا فرماتے لا يدخلون الجنة، 3 لوگ ایسے جو جنت میں داخل
نمبر ایک یاد کر لو نبی فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے؟ اور ایک مسئلہ بتا دوں، تلوار کی دھار پہ چل دو، علماء کی موجودگی میں پکا جا، کیونکہ یہ اچھے عالم ہیں۔ ایک تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں اور 1000 پیر، وہ بھی اچھے اچھے نقلیوں کی بات ہے، اصلی کی بات کر رہا ہوں، ادھر لائن میں کھڑے، 1000 مفتی، 1000 مولانا، 1000 پیر، اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، اور یہ سب کے سب مل کر کے صبح سے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہیں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں، ایک کی بھی دعا قبول نہیں۔ اماں کو دیکھتے نہیں، اور میں آیا تقریر کرنے، تھوک لگا کے نوٹ پہ نوٹ برسایا، چینل اس کی طرف تو دیکھ کے، کوئی ویڈیو کی طرف تو دیکھے، سمجھے؟ کبھی یہ دیکھا کہ میری اماں کو کھانسی آ رہی ہے، اسے 100 روپے کی دوا کی ضرورت ہے؟ میرے ابا کو کم دکھ رہا ہے، اسے چشمے کی ضرورت ہے؟ میرے ابا کی لنگی تھوڑی پرانی ہو گئی، اسے نئی لنگی لا دوں؟ اس طرف دھیان گیا نہیں، لوگوں میں نام ہو جائے، مجھ جیسا مولانا نوٹ پہ نوٹ۔ میں تو پہلے اپنے آپ کو بولوں، کسی اور کو دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر ماں باپ کا حق بھی تو ذرا پہچانو۔ کبھی دیکھا ہے ہمارے ماں باپ کمزور ہو گئے، بیچارے نماز میں اٹھ رہے تو کر رہا ہے، کوئی معجون لا دے، کوئی ڈبہ لا دے، انہیں انڈے کھلا دے۔ انڈے کیا کھلائے گا؟ ہر لقمے پہ اتنی چبی باتیں کہتا، اور اس کی بیوی اما ابا کو اتنی چبوی باتیں، کھانا نہیں کھا رہا ہے وہ، بلکہ انہیں کھانا کھا رہا۔ ایسے ہیں باپ۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان۔ کون بولو؟ ماں باپ کو ستانے والا، یہ میسج لے کے جانا، یاد کریں۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ہاں چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے تم لوگ مزار شریف پہ جاتے ہو، جانا بھی چاہیے۔ یار تمہارے علاقے میں تو نا آئے ہائے اتنے بڑے قائد بزرگ ہیں جن کا نام سید سالار مسعود غازی ہے، اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت یہ مقبول بارگاہ وہ ہے جہاں پر سیدنا حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ بارگاہ ہے، تھوڑا سا ایودھیا کے ادھر کو نکل جاؤ، دیوا شریف وہاں پہ پہنچے گے تم، یہ سب قائد کے بزرگ ہیں، قائد مسعودی شریف ادھر کو آئے، سمجھے؟ اور رضولی شریف ادھر کو نکل جاؤ، لکھنؤ حضرت شامینہ میں آئے، یہ سارے بزرگ ہیں، جانا چاہیے تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو۔ مگر ایک بات سن لو، مزارات پر جانا چاہیے، اور جانا مردوں کا جائز ہے، عورتوں کا جانا مزار پہ جائز نہیں ہے۔ بولو عورتوں کا مزار پہ جانا جائز، مگر تم تو چلے گئے کام کرنے، اور یہ اگربتیرے گھوم رہی ہے مزار، یہ مارے گی تیر آسمان میں۔ تم چلے گئے کام سے، تم چلے گئے کھیت میں، اور یہ مزار کے چکر لگا رہی ہے، میری بہن مزار پہ جانا عورت کا جائز نہیں، احناف کے نزدیک۔ اب میں بتا رہا تھا وہ سنو، ذرا توجہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں تمہاری دعائیں قبول ہو جائے۔ سید سالار مسعود غازی میں چاہتے ہو دعا قبول ہوتی ہے، غریب نواز میں چاہتے ہو دعا قبول ہوتی ہے، وارث پاک میں چاہتے ہو دعا قبول ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت میں چاہتے ہو دعا قبول ہوتی ہے، جس ولی میں جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک بار کا میں بھی بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہو، اس لیے میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اماں کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک بار کا مجھ سے سنو، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہے، وہ بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں ہے، وہ بارگاہ تمہارے باپ ہے، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائے، ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا
बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, मुफ्ती सूफी अब्दुल साहब नहीं कहते, सैयद साहब नहीं कहते, तुम नहीं कहते, ये नबियों के इमाम कहते हैं, अहमद मुख्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा व दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात निकल गई आगे को, मुझे फिर समेट के लाना उधरी। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। कौन नहीं जा सकता? अब जिनकी बेटियां मेले हो जाती है वो कान खोल कर सुन लें, बेटियों को नहीं माँ बाप को कहूंगा मैं, जिनकी बीवियां मेले को, और बात बस तो आदमी भी इतना बड़ा लट्टू है, समझे? हाँ, नई नई साड़ी पहनाई, खुद भी सैलून पे जा करके जो जहाँ बाल बाल बनते हैं उसको किसकी दुकान बोलते हैं? पार्लर पे, और ब्यूटी पार्लर पे तो हो ही जाती है। मगर वापस आदमी भी ऐसे ब्लीचिंग क्या होता है वो सब करा के आता है, समझे? ये सारी चीजें करा। अब जा रहे हैं मेले को, वो ठेले पे खड़ी है, वो चाउमीन बर्गर मोमोज और वो इतने बड़े पोटाशियम फैला के ऐसे खरीद खुले जाए बीच दुपट्टा एक तरफ पड़ा, कोई पर्दा नहीं, साड़ी पहनेगी तो इस डिजाइन। वो शौहर भी सुन ले और भाई भी सुन ले, जिनकी बहनें मोबाइल लेकर के अपना जिस्म दिखा करके मेले को जाती है, वो भाई भी सुन। खैर तो मनाओ, मैं बच्चे को नहीं कहूँ, तुम्हें। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं आ सकते। ये किसी मौलाना का फैसला नहीं है, नबी का फैसला है। नबी फरमाते हैं नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस। कौन बोलो? इमाम साहब बता दो ना। माशाल्लाह प्यारे इमाम साहब है, सीधे, और 40 साल कितने हजरत? 30-35 साल तो हो गए होंगे, बोलो। अच्छा 38 साल इमाम साहब का भी एक दिन गिना हुआ है, ये पता नहीं कब निकल जाए। 38 साल अल्लाह का शुक्र है। बात जगह ना हजरत, अगर इमाम को परेशानी तो ये ना, अगर इमाम को सख्त तकरीर कर दे, अच्छी तरह कांटे की कर दे, तो उसकी इमामत छूट जाती है। ये बड़ी परेशानी। मगर सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब वो माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिनकी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, वो माएं सुन ले जिनकी बेटियां चेहरे दिखाती फिरती है, जिनकी बेटियां अपने कपड़ों के जरिए अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है, मेले ठेले में घूमती है, मोबाइलों पे चैटिंग करती है, गाने सुनती है, एयरफोन लगा करके म्यूजिक सुनती है, वो माँ बाप सुने नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं आ सकते। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां हमारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लोगों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मेले ठेले में जाकर के बेपर्दगी से इस्लाम को दाग कर रही है। दयूस वो शौहर है जो अपनी बेटियों को, जो अपनी बीवियों को अपने दोस्तों से मिला रहा, बेपर्दा को मारा। दयूस वो भाई है जो अपनी बहनों को बच्चली का सबक सिखा रहा है और वो उनपे खुश है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब वो माँ बाप जिनकी बेटियां मेले में जाए, कितनी नमाजें पढ़ ले, वो माँ बाप जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने और अपने जिस्म को दिखा, दीन को, इस्लाम को दाग करे, कितने रोजे रख ले, कोई मौलाना नहीं। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं है। लाओ इस हदीस का तोड़। तुम्हारे यहाँ ब्याह होता, शादी होती है, बोलो होती है नहीं होती? अरे हाँ ना बोलो, होती है नहीं होती? हाँ नहीं बोलते, ये होती है, समझे? क्या बोलो? होती है। तुम्हारे यहाँ शादी में औरतें भी, ये लड़कियां भी, अगर 50 आती होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने। अम्मा कहाँ गई? अम्मा, इस अम्मा से दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया?
इस अम्मा से अपनी बेटी के कपड़े क्यों नहीं, अम्मा क्या संभालेगी, वो तो खुद अम्मा बनी पड़ी है। उसके चेहरे पे झुर्री पड़ गई है, 45 साल की हो गई है, मगर ऊंची अब भी फिरा रही है चेहरे पे, मैं कब अब भी चल रहा कौन मत कट्टा है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, बात निकल गई। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा तई जन्नत में नहीं जा सकता, अब इसको भी समेट रहा हूँ। तीसरा वो लड़के जो लड़कियों जैसी बना बना रहे, कुंडल पहनना, चैन पहनना, कंगवा लगाना, चूड़ी पहनना, और तो जैसे कपड़े पहनना, समझ रहे मेरी बात? कितने लड़के ऐसे। अच्छा फिर ये गांव में ना अपने आप को हीरो, बंबई से आएगा वो ऊंची बांध के पीछे रबड़ बैंड डाल के, फिर अपने आप को क्या समझता है, हीरो। हीरो नहीं है, जीरो है, जीरो। अगर इजाजत हो तो बताऊं, ये बताओ, कानों में कुंडल पहनना मर्दों का काम है, औरतों का? नाक में नथुनिया औरतों का, गले में चैन औरतों का, हाथ में चूड़ी गड़े औरतों, कंगा और रबड़ बैंड औरतें। अब मर्द था अच्छा वाला, औरत तो था नहीं, मगर औरत बन गया, और औरत बन नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने मर्द बना दिया, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? अरे तुम्हें कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला है आप लोग? अब मैं ही कहूंगा तभी समझोगे क्या। बीच का कौन होता है? छक्का। अब तुम अपने आप को कौन सी मंजिल में रखोगे तुम जानो। सुनो, सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चल रही थी। अब सवाल क्या था? कुछ लोग ना ये बकते हैं, कहते हैं कि इमाम हुसैन अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। सवाल था ना, अपने भांजों की मदद नहीं कर पाए, भतीजों की मदद नहीं कर पाए, अपने लोगों की मदद नहीं कर पाए। तो ये कमेटी वाले जलसा कर रहे हैं, ये सब मदद मांगते हैं, सब कर रहे हैं। तो जो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए तो तुम्हारी कहां से करेगा? तुम्हारे पास जवाब है? आज मैं तुम्हें जवाब सीखना चाह रहे हैं, ऐसी बातें याद करा करो यार। हमसे तो इनसे तुम बाद में टकराएगी, पहले तुमसे मुकाबला होता है और तुम हार जाते हो। हमारी कौम के बच्चे सिपाही होना चाहिए। बोलो जवाब सुनोगे इसका? तवज्जो से सुनना, और बात जहन में आ रही है। देखो पूरी गलत बात बेटा, तुम अब मत खाइए। अच्छा ठीक है ना, अब खाली तो कोई बात नहीं, आगे तो नहीं खाओगे। हाँ इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ गए, बात सच है, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, उनके बच्चे भी भूखे प्यासे रहे, उलमा मौजूद है। इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ गए, उनके बच्चे शहीद हुए, मगर हुसैन पाक ने बच्चों को नहीं बचाया, ये बात भी सच है। उनके भांजे शहीद हुए, बच्चों की मदद नहीं करे, ये बात भी सच है। उनके भतीजे शहीद हुए, हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन के बेटे तो भतीजे तो हुए, वो भी शहीद हुए। उनके भाई अब्बास के बाजू कटे, मगर हुसैन पाक नहीं बचा पाए, ये बात सच है। मगर जवाब सुनो प्यारे, अगर तुमसे कोई ये सवाल कर दे तो ये कह दे ये कमेटी वालों ने इतना बड़ा पिंडाल लगाया, इतने बड़े उलमा बुलाए, इतनी ये सारे सब कह रहे हुसैन पाक ने मदद नहीं की, फिर अपने बच्चों की नहीं की, तो तुम्हारी मदद कहां से होगी? जवाब सुन लो, जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी बहनें भी सुन ले। जवाब मैं दिए देता हूँ। जवाब इसका ये है, हुसैन पाक करबला में गए थे, मगर सुना आज कितने लड़के ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया होगा, जिन्होंने इंटर कर लिया होगा, जिन्होंने बी और एमए कर लिया होगा। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हाई स्कूल वगैरह कर लिया होगा। ये हाई स्कूल सभी जानते हैं। अगर किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे का फॉर्म भरा, हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया गया, जनाब फॉर्म किस लिए भरा गया? जरा मुझे बताओ। इसलिए भरा गया ताकि हमारा बच्चा इम्तिहान दे, हमारा बच्चा एग्जाम में पास हो जाए, इसीलिए तो भरा गया। अगर माँ मिली तो कह रही है हजरत दुआ करना मेरा बच्चा पास हो जाए, भाई मिला तो दुआ करा रहा, हजरत दुआ करना मेरा
मेरा भाई पास हो जाए, अगर बहन मिली तो मेरा भाई पास हो जाए, अगर वो खुद मिले सैयद साहब को मिले और कह दे तो सैयद साहब दुआ करना मेरा मैं खुद पास हो जाऊं, बोलो ये दुआएं करा रहे नहीं। हाँ हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगाई जा रही है, अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगाई जा रही है, ग्रामर में कमजोर है तो उसको टेंस वगैरह याद कराए जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो इसको ट्यूशन लगाई जाती है, पूरा तैयार किया जाता है। तैयारी के बाद अगर वो लड़का या लड़की अगर फेल हो जाए, अगर पास हो जाए तो सब में मिठाइयां बटती है, खुश हो जाते हैं मेरा बच्चा पास हो गया, नेट का इम्तिहान उसने पास कर लिया, कितने फोन हमारे पास आए थे हजरत दुआ करना। लेकिन अगर वो लड़का फेल हो जाए तो माँ कहेगी इसने हमारी बदनामी कर दी, भाई कहेगा ये मोबाइल ज्यादा चलाता है, दूसरे लड़के के साथ बैठता उठता है, इसने मेहनत कम की है, बाप कहेगा इसने मेरी गर्दन छुड़ा दी है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये हमारे तुम्हारे घर की बात है, मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ, नबी की बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन रखा जाता है, 4 हिजरी में पैदा होता है, 5 शाबान को पैदा होता है, नबी ने नाम हुसैन रखा। समझाने के लिए तमसील बयान की है, हजरत जिब्रील आ जाते हैं और आकर के कहते हैं प्यारे आपसे फायदा करना चाहता हूँ, अल्लाह ने भेजा है। क्यों भेजा है? क्या इसलिए भेजा है, ये आपका नवासा आया है, ये आपका बेटा हुसैन आया है, बेटा हुसैन आया है, आका इसको करबला में शहीद होना है, इसे करबला में इम्तिहान देना है। कहा कैसा इम्तिहान? कहा जब आपका दीन लड़खड़ाता होगा, जब आपका दीन नीचे आता होगा, जब इस्लाम का झंडा नीचे गिरता होगा, तभी ये इस्लाम के झंडे को पकड़ के उठाएगा, दीन को बचाएगा। कहा कैसे? कहा इसके बच्चे को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, अगर ये सब्र कर ले तो दीन बुलंद हो जाएगा, इसके बच्चे को शहीद किया जाएगा, इसकी बेटी के मुंह पे तमाचा मारा जाएगा, इसके भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन पाक के जिस्म पे 72 जख्म लगेंगे और इनकी गर्दन भी काट करके इनको शहीद कर दिया जाएगा। अब बताएं आपका क्या ख्याल है? आप अपने नवासे को बचाना चाहते हैं या दीन इस्लाम को बचाना चाहते हैं? ये मेरे नबी से वायदा हो रहा है, नबी ने फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरी बेटी फातिमा का प्यारा है, इसकी राह में फातिमा का दूध अली का खून है, ये इम्तिहान देगा, ये दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा, ये इस्लाम को बचाएगा, खुद सब्र करेगा, इसके बच्चों को काटा जाएगा मगर सब्र करके दीन को बचाएगा। अब ये बात जब हो जाती है, नबी ने वादा कर लिया था, अब सैयदा फातिमा को पता चला, फातिमा की आंखों में आंसू है, हुसैन पास जब बड़े होते हैं तो हाथ पकड़ के कहते हैं बेटी, कहती है बेटे मेरे लाल तुम्हारे नाना ने वादा कर लिया था, मेरा बेटा हुसैन तुम करबला में दीन और इस्लाम को बचाओगे, यहाँ क्या होगा? सैयदा फातिमा मेरी बेटा तुम्हारे बच्चों को तब पाया जाएगा, तुम्हें शहीद किया जाएगा, मगर मेरे लाल तुम मुझ जैसी फातिमा को गर्दन झुकने मत देना, सर झुकने मत देना, दुनिया ये ना कहे फातिमा के बेटे ने नबी का क्या हुआ वादा तोड़ दिया है, बेटा इम्तिहान में फेल हो गया है। हुसैन बोले माँ फिक्र मत करो, मैं भी अली का बेटा हूँ। इतने में हजरत अली आ जाते हैं, हजरत अली की आंखों में आंसू कह रहे बेटा तुम्हारा बाप उस वक्त नहीं होगा, तुम्हारे बाप ने बाबे खैबर उठा करके हाथ में लेके ढाल बना ली थी, मगर नबी पर आँच आने नहीं दी, दीन और इस्लाम को हमने जंगे और अखलाकी तलवार से हमने इसको संवारा है। बेटा हुसैन इसका पेश तुम्हारे कांधों पे आ गया है, दुनिया ये ना कहे अली का बेटा करबला में पानी मांग लिया, अली का बेटा करबला में खाना मांग लिया, अली का बेटा करबला में फेल हो गया। मेरे बेटे हुसैन अब तुम्हारे कांधों पर बोझ है। हुसैन कहने लगे बाबा मेरी रगों में माँ फातिमा का दूध है, अली का खून है, आपका बेटा फेल नहीं होगा। और लोगों बताओ हुसैन भी एक तरफ
मौजूद हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। फातिमा दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। अली दुआ कर रहे मौला मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। और नाना मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला मेरे नवासे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी देना। बताओ इन लोगों की दुआ कैसे रद्द हो जाती? उन लोगों से कह देना जो ये लोग कहते हैं कि हुसैन पाक अपने बच्चों को करबला में नहीं बचा पाए, अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, हुसैन पाक हार जाते हैं। उन लोगों से कहना जालिमो, मेरा हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं गया था, मेरा हुसैन करबला में पानी पीने नहीं गया था, मेरा हुसैन करबला में इम्तिहान देने गया था, मेरा हुसैन करबला में बच्चे बचाने नहीं गया था, बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों की मदद करने नहीं गया था, बल्कि दीन मुस्तफा की मदद करने गया था। मेरा हुसैन लड़ने नहीं गया था, बल्कि अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन और इस्लाम की जड़ों को हरा करने गया था। वो हुसैन है, वो हुसैन है जिन्होंने दीन और इस्लाम को बुलंद कर दिया। करबला में लड़ने नहीं, बच्चों को बचाने नहीं है। मेरा ईमान ये कहता है अगर हुसैन का कराने का एक बच्चा मैदान में होता, पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, बच्चे उठाते, तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, हुसैन का बेटा अपने हाथ उठाता, कहता मौला तुझे मेरी माँ फातिमा का वास्ता, तुझे मेरे दादा अली का वास्ता, तुझे मेरी दादी फातिमा का वास्ता, मेरे बाबा हुसैन का वास्ता, मेरे नाना मुस्तफा का वास्ता। ऐ अल्लाह जमीन को फाड़ दे, आसमान को दबा दे, खुदा की कसम उस बच्चे के हाथ नीचे नहीं आते और जमीन फट जाती है, आसमान टकरा। समझ में आई बात? अब जवाब मिल गया। उनसे कहना हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों की मदद करने का आए थे। ये बताओ अगर कोई लड़ता है मुकाबले में जाता तो क्या 6 महीने के बच्चों को लेके जाता है, बच्चियों को लेके जाता है, घर की औरतों को लेके जाता है? लेकिन इसलिए गए थे लेके अगर इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो किसी और के घर नहीं जाऊंगा, जवानी की जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा, बचपने की जरूरत पड़ेगी पेश कर दूंगा, बाजुओं की जरूरत पड़ेगी पेश कर दूंगा। अब सुनो, हुसैन पाक करबला में जो गए थे वो गए इसलिए थे ताकि इम्तिहान दूं और नाना के दीन को बचाऊं। जहां मदद करने की बात है तो कहते प्यासे रहे। हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, 13 या 14 पीढ़ी में करीब नवाज का भी नाम आता है। इनके हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया है, तारीख बोलो, मगर पावर देखो 13 या 14 पीढ़ी में हुसैन के बेटे का, सैयदों का पावर देखो। खुद नहीं गए, खुद जाता तो बात अलग होती है, खादिम को भेजा, जाओ प्याला लेके जाओ, राना सागर से कह देना जहां तक पहुंच जाओ, वहीं से कह देना ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोलो पानी आया था नहीं आया? यार 14 पीढ़ी के बाद जब बेटे का ये आलम है तो सगा बेटा प्यासा रह सकता था? इन पगलों से कहना जरा दिमाग से पढ़ो, होश में रह करके पढ़ो, तब पता चलेगा। हुसैन पाक का जब सदका मिलता है ना, तो अगर कोई बगैर औलाद है तो किसी को औलाद की शक्ल में मिलता है, किसी को रिज्क की शक्ल में मिलता है। हम तो खाते ही नबी के बच्चों का सदका। ये हुसैन पाक, एक आयत है, सुनो, बता सुनना चाह रहे अच्छा ये नहीं, या खत्म कर दूं? एक आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। और एक जगह इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून आयत है। इसका मतलब बता दो, इसका मतलब ये है कि जो लोग शहीद हो जाएं, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, कत्ल हो जाए, उनको मुर्दा न हो बल्कि तो जिंदा है। क्या है बोला? जिंदा है। और अपने तो तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर भी नहीं, और वो अपने रब के पास से रिस्क खाते, ये है ना बोलो। अब सुनो, गर्दन कट जाए, शहीद हो जाए, जिस्म उधर है और सर उधर है, तुम्हारे गांव के किसी डॉक्टर को लाओ तो साथ मरीज को दे दो। अब वो देखेंगे, कहेंगे पागल हो गए कि इसका जिस्म उधर, गर्दन ही तो मर चुका। तो जरा आगे मत बोलो,
قرآن کہتا ہے زندہ مردہ نہیں، شہید مردہ نہیں، زندہ۔ تمہارے پاس اس کا جواب ہے؟ کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو، تم کو مان سکتے ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر غیر کیسے ماننا؟ اس آیت کی تفسیر آج تک کسی نے دی؟ وہ ڈاکٹر امریکہ کے ڈاکٹر بلا کے، چاہے MBBS MD ہو، BMS، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، بلا کے کھلاؤ، گردن ادھر ہے، جسم ادھر ہے، سب یہ کہیں گے یہ مر چکا ہے، نہیں